بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. سبسکرائب to Gulmohar channel. ابھی جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے یہ مشہور و معروف سورت ہے. اس کا شان نزول یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاص ابن وائل اور ولید ابن مغیرہ نیز سرداران قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یوں کہا کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی یعنی لات، عزا، منات، حبل 360 کی تم عبادت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تو بہت دور کی بات، پل بھر کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. آیات اتری قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والو، اے سچائی کا انکار کرنے والو. اسلام ایک حق ہے، ایک سچائی ہے، اس کا انکار کر رہے ہو. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور فی الحال ولا انتم، اور تم بھی عبادت نہیں کرنے والے ہو ایک اللہ کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہاری اور میری راہیں الگ الگ ہے. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، میرے لیے میرا دین. یعنی صاف اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ایک. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صاف 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا. تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں سب کچھ بنا دیا، تمہیں پیدا کیا. صرف تمہیں نہیں والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا و سزا پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کے کائنات میں تصرف کے قائل رہو. وہ اللہ اپنی نعمتیں شمار کرتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. کیسی زمین بنائی الحمدللہ، نہ اتنی نرم ہے کہ پیر اندر چلے جائیں اور نہ اتنی سخت ہے کہ کوئی چیز اگے نہیں. عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنائی ہے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا،
वस्समाअ बिनाअ, आसमान को छत बनाया, वअंज़ल मिनस्समाइ माअ, और आसमान से पानी बरसाया, फिर पानी के जरिए मिनस्समरात, फल, गेहूं, चावल, दाल, अनाज, मुख्तलिफ चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पानी के जरिए तुम्हारे लिए रिज़्क़न लकुम, तुम्हारी ग़िज़ा, तुम्हारी खुराक के लिए निकाली है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, तुम जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को पूरा कुंबा बनाया। हम सब एक माँ बाप की औलाद है। आसमान हमारी छत है, जमीन हमारा बिछोना है, और जमीन को गोदाम बनाया। गोदाम का मतलब जैसे घरों में, कोठियों में अनाज गल्ला भर लेते हैं ना, जमीन में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए गल्ला भर दिया है कयामत तक के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस गल्ले को निकालेंगे और इसी को अपनी अलामत करार दिया। अलामत किसको कहते हैं? अलामत का माना निशानी। निशानी का माना यह है कि जो मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी बाहर से आ रहा हो और उसने पोलन बाजार देखा नहीं, तो रास्ते में बोर्ड लगा हुआ हो, यो पोलन बाजार लिखा हुआ और तीर लगा हो, तो उस तीर के जरिए कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा पोलन बाजार पहुंच जाएगा। नक्शे से आजकल पहुंच रहे हैं, तो इसी तरह वो पहुंच जाएगा। ऐसे ही जमीन को अल्लाह ने अपनी मारिफत का जरिया बनाया, अपनी पहचान का जरिया बनाया। कुरान खुद कहता है सूरह यासीन में, वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील व अनाबिन वफज्जरना फीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। गौर कीजिए, अल्लाह हमें कैसे समझाते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, और ऐसी ऐसी मिसालें देकर अपने करीब अपने बंदों को बुलाते हैं। अल्लाह जैसा रहीम कोई नहीं, अल्लाह जैसा करीम कोई नहीं, अल्लाह जैसा शफीक कोई नहीं। अपने बंदों को किस चाव से समझाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वायतुल लहुमुल अर्द, मेरे बंदो मुझे पहचानना हो, मुझ तक तुम्हें पहुंचना हो तो बंजर जमीन पर गौर कीजिए। बंजर जमीन होती है, अल्लाह उसको किस तरह लहलहाती खेती में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अहयैनाहा, हमने उस जमीन को सरसब्द व शादाब कर दिया, हरा भरा कर दिया। और फिर जमीन ही से वअखरजना मिन्हा हब्बन, जमीन से हमने दाने निकाले, अनाज, गल्ला, गेहूं, मूट, मटर, सब्जियां और यहाँ पाए जाने वाले सारे फल अल्लाह ने जमीन से उगाए हैं। हालांकि जमीन एक है, पानी एक है, ग़िज़ा और फल अलग अलग है, जायके अलग अलग है। वफिल अर्द क़ितअुम मुतजाविरातुन व जन्नातुम मिन अनाबिन व ज़ैतून व नखीलन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बाज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हमने कभी इफ्तार के वक्त सोचना चाहिए। कुरान तो गौर व फिक्र की दावत देता है। हर मोमिन का कदम, हर मोमिन की सोच अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर होनी चाहिए। इक़दाम से पहले सोच, हम इफ्तार के वक्त खजूर खाते, कभी सोचा कि अल्लाह ने कैसे बनाया, हमारी ग़िज़ा के लिए हमारे दस्तरखान पर कैसे पहुंचाया है। दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सोचना चाहिए। इसीलिए तो दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने खिलाया, जिसने पिलाया और हमें मुसलमान और वफादार बनाया।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबाना व अरवाना व अनअम अलैना व अफ़ज़ल। वो अल्लाह जिसने हमें खिलाया पिलाया शिकम सैर किया और हम पर एहसान फरमाया। तो यही तो है कि वह अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून, उसी से तो खाते हैं। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील, और हमने उसमें खजूरों के बागात बनाए, अंगूरों के बागात बनाए, पानी के चश्मे जारी कर दिए। लियकुलू मिन समरिही, ताकि उसका फल खाए। अल्लाह कहते ये तुम्हारे हाथों ने थोड़ी बनाया है, तुमने तो सिर्फ बीज डाला है, सारा काम हमने किया है और अल्लाह ही कर रहे हैं। इसीलिए सूरह कुरैश की तफसीर में अल्लाह ने क्या किया था, फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, इस घर के मालिक की इबादत करो जिसने तुम्हें खिलाया है। तो खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह हमें यूं ही खिला रहे हैं पिला रहे हैं। खुलासा ये है कि ये जो आयात है कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, कहा जा रहा है कि गीत उसी के गाए जाते हैं, सजदा उसी का किया जाता है जो खिलाता है, जो पिलाता है, जो सहूलतें देता है। बतलाइए अल्लाह ने हमको कितनी सहूलतें अता फरमाई। लिखा है कि सूरज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, मुफ्त में रोशनी देता है। हजरत मौलाना शिहाबुद्दीन नदवी रहमतुल्लाहि अलैह जो बहुत बड़े आलिम फाजिल गुजरे हैं, जिनका मुताला बहुत वसी था, तकरीबन 100 के करीब साइंस और कुरान पर, इस मौजू पर तकरीबन 100 किताबें लिखी। मौलाना लिखते हैं कि अल्लाह की नेमतों पर गौर कीजिए। देखिए जमीन को अल्लाह ने बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, और हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है तो तू गोले अता फरमाए, एक सूरज की शक्ल में अता फरमाया और एक चांद की शक्ल में अता फरमाया। और फिर एक मिसाल देके उन्होंने समझाया कि सूरज से अल्लाह जो रोशनी दे रहे हैं और जिसको हाइड्रोजन कहा जाता है, अल्लाह जो रोशनी दे रहे हैं वो रोशनी इतनी कीमती है कि उसी से ताकत और तवानाई पैदा होती है। फलों में मिठास सूरज की रोशनी से पैदा होता है, और आजकल तो सोलर हर जगह है, बिजली भी उसी से है। मौलाना मिसाल देके समझाते हैं कि अगर मीटर लगा दिया जाए, हालांकि ये मुमकिन नहीं, लेकिन मौलाना फरमाते हैं कि बिल फर्ज अगर हम सूरज पर मीटर लगा दें और एक दिन का बिल अल्लाह हमसे तलब करें कि सिर्फ 24 घंटे का बिल हमारा तुम दे दो, तो हम उस बिल को चुका नहीं सकते। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। लेकिन कभी हमने शुक्रगुजारी नहीं की कि अल्लाह तेरे इस सूरज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी से तवानाई और ताकत हासिल कर रहे हैं, फलों में जिससे मिठास पैदा होता है। इसलिए लिखा है कि जो खतरनाक किस्म का मुजरिम, ढीठा गुनहगार जिसको कहते हैं, उसको ऐसे कमरे में बंद किया जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं होती। नतीजा ये होता है कि उसका बदन सुकड़ जाता है और वो कपड़ों का एक जो पलंदा होता है उसकी तरह हो जाता है। असहाबे कहफ को जब अल्लाह तबारक व तआला ने गार में सुलाया तो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी, यानी सूरज का फायदा उनको मिलता था ताकि उनका जिस्म महफूज रहे। तो ये वो चीजें हैं जिस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। उलमा ने लिखा है और आज भी कहते हैं कि एक दिन आएगा कि ये जो गोला है वो खत्म हो जाएगा, यानी सूरज बुझ जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई ये बात तो कुरान में 1400 साल पहले कही है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, इदश्शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हम क्यों करें? इसलिए कि अल्लाह हमारे मोहसिन है। हदीस में आता है
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह हमें खिलाते हैं, अल्लाह हमें पिलाते हैं, अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ लॉकडाउन का वाक़या। ये मशहूर रिसाला रफ़ीक मंजिल जो दिल्ली से निकलता है, वहाँ उन्होंने हवाले के साथ उसका नाम के साथ वो दिया है। रफ़ीक मंजिल में जो वाक़या लॉकडाउन का नकल किया है अल्लाह की नेमत और कुदरत पर, लिखा है कि एक बहुत बड़े सरमायादार हाजी साहब थे, मुसलमान तो थे ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें बड़ा इनकलाब आया। वो 5 वक्त के पक्के नमाजी बन गए, जिक्र व अज़कार और तहज्जुद की पाबंदी, गोया वो तमाम चीजें जो एक अल्लाह के नेक बंदे में हुआ करती है वो उनमें मुंतकिल हुई। जानने वाले तो किसी को छोड़ते नहीं। हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आपके अंदर ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हुआ कि आप अल्लाह के नेक बंदे बन गए? उन्होंने कहा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब मैं लॉकडाउन में बीमार हुआ, सांस लेने में मुझे तकलीफ होने लगी, मुझे एक बड़े अस्पताल में एडमिट किया गया और मेरा जो सांस लेने का जो ऑक्सीजन था वो कम था, तो अस्पताल मुझे ऑक्सीजन दिया गया। मैंने ये सोचा कि ऑक्सीजन का बिल क्या हो सकता है। का पैकेज 11 लाख का था। मैंने कहा कि 11 लाख का पैकेज हम आपको दे देते हैं, कोई हर्ज नहीं, ये हमारे लिए मामूली चीजें, बड़े सरमायादार आदमी थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चीजें आप इस्तेमाल करें उसका सारा बिल अलग हो। मसलन ऑक्सीजन के रुपये अलग लिखे जाएं और दवाओं के रुपये अलग लिखे जाएं, या और खिदमात की जो फीस है उसको अलग लिखा जाए। वो राजी नहीं होते थे। का पैकेज 11 लाख है, 11 लाख। हाँ 11 लाख पूरे देंगे, बस आप सिर्फ ये अलग अलग करके दीजिए। तो किसी तरह राजी हो गए। आजी साहब फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमाई, मैं बहाल हो गया, सेहत याब हो गया, मैंने बिल देखा, तकरीबन ऑक्सीजन के 9 लाख के करीब रुपये सिर्फ ऑक्सीजन के होते थे। मैंने सोचा कि मेरी उम्र तो 60 साल के करीब है या जो भी हो। कहा, मेरा अल्लाह पहले दिन से, बल्कि जब मैं माँ के पेट में था वहां से लेकर अब तक फजा से मुस्तकिल तौर पर मुफ्त में ऑक्सीजन देता रहा, उस अल्लाह की मैंने कोई कदर नहीं की। उनकी जैसी इबादत करनी चाहिए कभी नहीं की, उसका जो शुक्रिया अदा करना चाहिए कभी नहीं किया। अब मुझे इस नेमत का एहसास हुआ कि चंद दिन ऑक्सीजन न मिले और हमें खरीदने की नौबत आए तो कितना रुपया हो सकता है, ये इससे वाज़ेह हो गया। वो अल्लाह जो हमें मुफ्त में हवा में ऑक्सीजन दे रहा है, यानी फजा में, हवा ही में ऑक्सीजन होता है, पूरी फजा अल्लाह ने उससे भर दी। आदमी 5 मिनट इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बतलाइए ये अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जिंदा रखा। तो अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। जब अल्लाह ने हमें हिम्मत, सेहत और ताकत अता फरमाई है तो रमजान का महीना है, जिस कदर नफली इबादत हो सकती है गुरेज नहीं करना चाहिए, दरेग नहीं करना चाहिए। हमें तस्लीम व रजा का माना यह है कि हमें अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए और अल्लाह ताला से मुआहदा करना चाहिए, ए अल्लाह मैं तेरे अहकाम के खिलाफ कभी नहीं करूंगा, तू जो हुक्म देगा मैं उसको बजा लाऊंगा, जिन चीजों से तू मना करेगा मैं रुक जाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक बंदा बनकर रहना चाहिए। अभी जो आयत तिलावत की गई, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम सबने सुना होगा। अपने जमाने के अजीम मुफस्सिर थे और अल्लाह ने उनके हाथ से 2 तफसीरें लिखवाई, एक उर्दू जबान में, एक अंग्रेजी जबान में।
तफसीर माजदी हमारे यहाँ कुतुब खाने में मौजूद है, ऊपर बड़ा कुतुब खाना है, वहाँ मौजूद है तफसीर माजदी, अंग्रेजी में भी है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक जमाना आवारगी का जमाना था, कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में उस जमाने के जो मुफक्किरीन कहे जाते हैं, यूरोप के मुफक्किरीन, मील है, हेगल है, डार्विन है और भी मुख्तलिफ जिन्होंने उम्मत को गुमराह किया है, जिनसे लोग बहुत गुमराह हुए हैं, कहा मैं उनकी किताबें पढ़ने लगा। यहाँ तक कि एक दौर वो आया कि मैं अल्लाह का इनकार कर बैठा, यानी अल्लाह है ही नहीं, कौन कह रहे है। वो आदमी जिसकी तालीम और तरबियत दीनी घराने में हुई है, उनके वालिद मौलवी नुमा और उनके दादा तो अपने जमाने के बहुत बड़े मुफ्ती अब्दुल करीम साहब, जिनके फतावे का पूरे लखनऊ के अतराफ में चर्चा था, और माँ भी पाकीज़ा दीनदार, पूरा माहौल दीनी घराने का। लेकिन जाहिर है जब इधर उधर की चीजें आदमी पढ़ता है तो कभी राह हक से मुनहरिफ हो जाता है, वो रास्ता गुम कर देता है, गुमराह हो जाता है। कहा मैं अल्लाह का इनकार कर बैठा। फिर उन्होंने अपना वाकया सुना है, ये वाकया हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो दारुल देवबंद के मोहतमीम थे। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मैं तो खुदा का इनकार कर बैठा। मैं उस जमाने के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी को मिलने गया। अकबर इलाहाबादी मशहूर शायर है। मैं अकबर इलाहाबादी के दरबार में गया, उनके घर। अकबर मुझे जानते थे कि मैं मुल्हिद हूँ, मैं खुदा का मुनकिर हूँ, लेकिन वो ये भी जानते कि ये चीज आरजी है। माजिद मियाँ कहते थे कि माजिद मियाँ कभी न कभी अपनी असली हालत पर लौट आएंगे। कहा मैं गया और अकबर इलाहाबादी ने बड़ा अच्छा सुलूक किया। बातों बातों में मुझसे कहने लगे, अरे माजिद मियाँ, कुरान करीम के आखिरी जो 15 पारे हैं उसका अदब बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ा करो। कहा मैं इन खुराफात को नहीं मानता, ये तो किस्से कहानियों की किताब है। अब्दुल माजिद दरियाबादी से कहा अकबर इलाहाबादी ने, अरे मैं कहाँ ये कहता हूँ कि तुम उसको अल्लाह की किताब मान कर मुताला करो। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि तुम्हारी अरबी बहुत अच्छी है, तुम्हें वुजू की भी जरूरत नहीं, बस यूं ही आप मुताला कर लिया करो। कहा मैं तो घर आया और वुजू का तो मसला था ही नहीं, मैंने तो आराम कुर्सी पर यूं करके कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब पढ़ते पढ़ते जब इन आयात पर पहुंचा जो अभी मैंने तिलावत की, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे अगले लोगों का। एकदम मुझे शर्म आ गई और पैर मैंने सुकर लिए, कोई खुदा है, कोई रब है, कोई पैदा करने वाला है। मैं उठ बैठ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुरान पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि कुरान की तफसीर लिखी, आज वो मरजा है। मरजा का मतलब यह कि हम जैसे लोग अंदर से मुताला करके आते हैं और आपको बतलाते हैं। जैसे बड़ी दुकान होती है ना, वहां से चीजें लाकर बेचते हैं, तो हम भी तफसीर आपको वहीं से बेचते हैं, वहां से खरीद कर लाते हैं, मुताला करके लाते हैं और आप हजरात को सुनाते हैं। ये है अल्लाह, उसी की इबादत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में आदमी अगर कोताही करता है, सुस्ती करता है, तो कल ही सुना फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज से गफलत करते हैं उनके लिए तबाही और बर्बादी है। तो सबसे बड़ी इबादत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे बड़ी इबादत है। और उसके बाद नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत, रोजा अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत, हज अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत, ज़कात माली इबादत भी है। ज़कात
बदनी इबादत भी है, और हर वो चीज जो इंसान के लिए नाफे हो और जिसमें नीयत अच्छी हो, ये इबादत शुमार की जाती है। तो हम एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Subscribe to Gulmohar channel.